रूहों को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा, सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते रूहों Om Shanti, Sister Janti. And greetings from Madhuban. I'm still here, a few more days. And just wanted to say that when Baba became a Vyakt, then Dadi Kumarka sent Sandeshi Dadi into trance. And so to ask Baba, like, what is going on? And the message that Sandeshi Dadi brought back is, Baba said, कि चीज हमारे पास है, आप पुरुषार्थ करो.
And so the message was simple, that Baba was saying that the thing, the thing meaning Baba's soul, Brahma Baba's soul is with me, and you children just make effort, simply make effort, move forward. And Santri Dadi was sharing how even that Murli, that last Murli on 18th evening was all about Dharna. And Baba saying, like, don't criticize anybody. And it's good if somebody criticizes you because they point out your weakness. And then it's good that you know your weakness so you can make effort. Jo glani kare wo aapka mitra, you know, they are your friend. Baba said, don't take revenge on those who insult you. And Baba was saying that think about the self, swachintan, and don't think about others. So you can see right till the end, Baba was really trying to give the last piece of advice to the children. And just this last story, Gentiben, and then maybe we can take it up later. But Chandru Ben of San Francisco often mentions that everybody would be competing to hold Baba's hand when they went walking. And when she held Baba's hand, it felt like cotton wool. And so, gentlemen, I'd like to take this up later about the effect of tapasya on the bones, on the body, on the body consciousness. So anyway, welcome everyone. Thank you, Sister Gently. Thank you, Arunaben. Om Shanti. And since we last met, all of you have participated in the Global Silence Bhatti for 3 days. And the aim had been 8 hours of tapasya each day. Maybe some of you managed it, maybe not every day, but maybe 1 or 2 of the days, 8 hours was possible. And you had a digital detox. And so all of that was a beautiful preparation for 18th January. And so we're taking up the Murli that Baba spoke this time in Madhuban on the video, 18th January, but it was actually spoken by Baba on the 18th of January in 2011, something like that, 2011. So Dadi Kumarka had become Avyak. There was a new scene of drama going on. Dadi Janki was now the person responsible. And everybody, again, must have sat up in yoga from early morning. And I know that here in London, we were very, very much engaged with that Global Bhatti. And 3 o'clock in the morning, we'd be in Baba's room. And then 4 o'clock, we'd be in the auditorium. And each day we had a lovely, lovely gathering. So that's the context, because Baba started by saying that even before 4 o'clock, Baba was seeing that all the children were sitting in remembrance, and Baba was seeing the garlands of love that the children were putting on Baba. And of course, Baba was thinking about the praise that the children had, the thanks that the children were giving, but also maybe the tears of love that were shining in people's eyes. And even now at that time, in front of Bap Dada, Avyak Bap Dada, there would have been many, many who had those tears in their eyes. And so Baba seeing that all the children really filled with a huge amount of love for Father Brahma. And Baba reminding us that that love is the love. Baba हमें याद दिला रहे थे कि वो ही प्यार जो बाबा का बने हुए बच्चे हैं, हम बाबा को कहते मेरा बाबा और बाबा हमको कहते मेरे बच्चे। तो बाबा हमको जो प्यार दिखाते हैं उसमें हम बाबा का बनकर के रहते हैं, हम बाबा हमारे बनकर के रहते हैं। God, our Father, shares all of his treasures with us just as soon as we say, my Baba. And we claim the right to all those treasures instantly.
Baba doesn't keep anything back at all. And of course, it is this love that protects us from बाबा का प्यार ही हमें और सब आकर्षणों से बचा करके रखते हैं। इससे ही हम बहुत गहराई से आत्म अभिमानी स्थिति बना करके रख सकते हैं और देहभान की स्थिति से हम अपने को मुक्त कर सकते हैं। तो ये स्नेह की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। फिर हम देखते हैं कि कैसे हम बाबा से शक्ति प्राप्त करते हैं। स्मृति और समर्थी 18 जनवरी समर्थी का दिन है। बाबा हमको बताते हैं कि इसी दिन पर बाप जो सब कुछ कराने के निमित्त बनता है, वो बच्चों को विश्व सेवा की स्टेज पर लाते हैं और खुद बच्चों के द्वारा सेवा करते रहते हैं। बच्चे करनहार बनते और वो करावनहार बन करके कराते रहते हैं। तो सचमुच उसी दिन से बाबा सूक्ष्म वतन में बैठ करके बच्चों द्वारा कराते रहते हैं और दादियां सब सेवा के स्टेज पर आए। दीदी दादी और उन्होंने सब और दादियों को अपने साथ लेके आए। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को वो जिम्मेवारी का तिलक दे रहे थे और जैसे ही बच्चे ये स्मृति रखते हैं कि हम निमित्त है और वो नम्रता भी रख कर के सब कुछ करते हैं, तो उसमें मैंपन का जो अभिमान है, कितने सालों से उन्हों को वो ईगो था, हजारों सालों से वो अभिमान था, लेकिन उसको कैसे खत्म करना। तो बाबा से हम वो शक्ति लेकर के हम देख सकते हैं कि नम्रता से, निमित्त भाव से हम देखते हैं कैसे हमें हर वक्त सफलता मिलती है और उसमें सफलता का विजय का तिलक चमकता है अपने भ्रुकुटी के बीच में। बाबा ने कहा, बच्चों को देख करके बहुत ही खुश है। सभी बच्चों का एक ही एम है और लक्ष्य है कि हम बाप समान बने। बाबा सिर्फ ये दो बातें बता रहे थे। हम हमेशा कहते हैं कि ये अलग अलग है, लेकिन बाबा वो दोनों चीजों को मिला करके कहते थे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्थिति और ब्रह्मा बाबा साकार दुनिया में जीवन मुक्ति की स्थिति में। तो बाबा ने कहा कि ये आपका लक्ष्य है ना, कि हम अव्यक्त स्थिति प्राप्त करें और साथ साथ हम अपनी जीवन मुक्ति की भी स्थिति प्राप्त करें अभी से ही। अभी पहले जीवन मुक्ति अनुभव करेंगे, उसके बाद अव्यक्त स्थिति हमारे साथ ही होंगी। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत ही जिम्मेवारी थी सारे यज्ञ की, सभी बच्चों को योगी बनाने के लिए, हर समय उनको मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सेवा की आइडियाज में उन को उमंग उत्साह देने के लिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल बंधन मुक्त। हमेशा जैसे बाबा एकदम हल्केपन से सब कुछ करते थे, शरीर में होते हुए भी जैसे मुक्त थे। तो ये जैसे जीवन मुक्ति की स्थिति, यही अभ्यास हमें, जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास हमें अव्यक्त स्थिति प्राप्त कराने के लिए बहुत मदद करती है। तो बाबा ने हम सबको होमवर्क तो दिया, फिर बाबा ने कहा उसका रिजल्ट क्या है। बाबा ने देखा कि हम सब योगी है, लेकिन सदा योगी नहीं है, निरंतर योगी नहीं है। लक्ष्य है, लेकिन सदैव वो लक्ष्य नहीं है। तो बाबा ने फिर बताया, बाबा ने
कहा कि ये शुद्ध इच्छा, अगर किसी को प्यार करते हो, किसी के लिए प्यार है तो उनकी इच्छा पूर्ण करने चाहते हो। तो बाबा अपने लिए तो कोई सौगात नहीं मांगते हैं हमसे, दोनों में से कोई भी बाप हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन हमें आगे जंप लेना है। बाबा ने कहा आपका यादगार है कि आप मन जीत जगत जीत बन गए हो। तो यही मेरी शुद्ध इच्छा है कि मैं बाबा से ये सौगात प्राप्त करूं, मैं ये होमवर्क करूं जिसके आधार से मैं निरंतर योगी बन सकूं और बाप के कदम पर चलने वाले एक एग्जाम्पल बन सकूं। जैसे हम ये कर्मेंद्रियों के मालिक होकर उनसे कार्य कराते रहते हैं, ऐसे ही हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं, अपने संकल्पों के मालिक बन सकते हैं, या कभी कभी मन मालिक बन जाते हैं और हमें अपने वश कर लेते हैं कि मैं आत्मा मालिक बनकर मन के इंचार्ज में रहूं, मन को अपना सहयोगी साथी बनाऊं, ताकि मन को जैसे गुलामी की तरह से नहीं चलाए, लेकिन मन को इतना प्यार देवे, इतना स्नेह देवे तो वो सहयोगी साथी बन जाए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखे कि मैं आत्मा मालिक चार्ज में हूँ, मेरे ऑर्डर से सब कुछ चलता है। तो उसी स्थिति में हम बाबा के आगे कंप्लेन नहीं करेंगे कि बाबा अभी भी मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। उस समय हमने बाबा को प्यार की सौगात दी है, तो वो गिफ्ट का मजा अनुभव करो। बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसका अभ्यास करो। कई बारी हम कहते हैं हम 1 घंटा योग में बैठेंगे, लेकिन 1 घंटा हम सचमुच बैठते हैं योग में, या थोड़े समय हम बैठते हैं फिर मन कहीं और चले जाते हैं, संकल्प और चलने लगते हैं, हमें योग में डिस्टर्ब करते हैं। या हम कहते हैं कि 1 घंटा हम योग में बैठते हैं, तो सचमुच उसी स्थिति में बैठते हैं। मन हमारा मित्र है, मन हमारे से सहयोगी है। तो जब भी हम सब कुछ हमारे चार्ज में रखते हैं तो सब कुछ सहज रीति से होता है। बाबा जानते हैं कि कई बारी आत्मा को वो हिम्मत नहीं होती है। बाबा ने कहा अब बाबा को याद करो, जो भी संबंध आप चाहो बाबा आपको सहयोग देंगे, आपको मदद करेंगे। कई बारी बाबा बाप बन करके सब कुछ, बाबा बच्चा बनते हैं, कभी हमारा फ्रेंड बनते हैं। बच्चा बनते हैं तो उनके साथ खेल करें, तो बाबा के साथ अलग अलग संबंध से हम अनुभव करें। तो 1-1 घंटे में हम अपने मन को अलग अलग तरीके से बिजी रखें। जैसे कई बारी हमारे पास 2 घंटा है जिसमें बहुत सारा कार्य करना है, तो क्या हम वो कार्य कर्म योगी बन करके वो कर सकते हैं? हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारा दिल बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बाबा ने कहा अगर बाबा के प्रति इतना प्यार है तो जैसे 18 जनवरी के दिन सभी का दिल बाबा के साथ एकदम सहज रीति से, नेचुरल रीति से जुड़ा हुआ रहता है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पहले कई आत्माओं साकार बाबा को नहीं मिले थे, लेकिन बाबा जानते थे कि कई आत्माएं हैं जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं मिले हैं, और अभी तो वो मौका नहीं मिलेगा। उस समय ऐसे लगता था कि बाबा हर सीजन आएंगे, हर 2 हफ्ते बाबा हमको मिलते थे, ये तो हमारा जैसे रूटीन बन गया था।
लेकिन बाबा को मालूम था कि यज्ञ में ऐसा समय आएगा जो बाबा वो अनुभव हमको नहीं करा सकेंगे। जो बाबा कहे कि आपने अव्यक्त बाबा को तो देखा है और कैसे वो इतना प्यार से भी बच्चों को देते हैं। तो बाबा ने ये नहीं कहा, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा ने कहा कि आप लोगों ने बाप दादा को पहचाना है अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी स्मृति से। तो उसका मतलब अभी के समय सभी के लिए है। साकार आकार कोई भी बाबा को पहचान सकते हैं बुद्धि से, समझ से, अपनी स्मृति से। तो बाबा की हाजिरी का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है ये सभी के लिए अभी हाजिर है और हर समय ये अनुभव कर सकते हो। तो बाबा की हाजिरी का अनुभव करो बुद्धि के द्वारा। जब बाबा ने कुछ पूछा तो सभी ने अपना हाथ ऊंचा किया कि हाँ, हम बाप को पहचानते हैं बुद्धि के द्वारा, खास करके आज के दिन 18 जनवरी के दिन। अगर मैं बाबा को अपने साथ रखना चाहती हूँ तो क्या? अगर वीडियो हमारे साथ है तो हम वो जाकर के देखें, लेकिन अपने मन में अपने समय में जाए और देखे बाबा कौन है और बाबा की हाजिरी का अनुभव करो और आपको अनुभव होगा कि बाबा मेरे साथ है। फिर बाबा ये भी बताते हैं कि बाबा को जो अच्छा लगता है वो है मुरली। बहुत ही सिर्फ साकार बाबा की बात नहीं है, लेकिन अगर हम मुरली से पहले आधा घंटा योग करते हैं, मुरली से पहले हम सभी को बोल रहे थे कि 6 बजे आकर के योग करें, 5 मिनट उसके बाद, लेकिन ऐसे नहीं कि 6:30 बजे आए जब मुरली शुरू होती है। लेकिन अपने मन को पहले से तैयार करें ताकि वो बुद्धि तैयार करे, बाबा का आवाहन करे टीचर के रूप में और फिर मुरली को सुने। तो उसमें मुरली किस लहर से चल रही है वो अनुभव कर सकेंगे। मुरली से हम उस सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो वो टीचर कितने दूर से आता है वो हम फील कर सकते हैं। बाबा कितने दूर से आते हैं। बड़ा संगठन होता है तो भी उसमें ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी बाबा मुरली लिख करके भेजते थे। तो मम्मा वो फिर पढ़ करके सुनाती थी। जब हम मुरली से इतना प्यार रखते हैं, भले मैं बिंदु रूप नहीं अनुभव कर सकती हूँ, अपना अव्यक्त रूप, बाबा का अव्यक्त रूप हर घड़ी नहीं याद कर सकती हूँ, तो मैं बाबा को याद करूं। तो बाबा का मुरली का जो साज होता है उसको मैं याद करूं। कैसे वो याद करते हैं बाबा को। Much in 18th January Murli, in which Baba expresses his love. 18 जनवरी की मुरली जिसमें बाबा हर बच्चों के लिए अपना प्यार बताते हैं और कैसे
बाबा की उम्मीद है कि हम बच्चे बाप दादा की उम्मीद पूरी करें। if the one you love asks you to do something, जिसके लिए प्यार होता है, अगर वो हमको कुछ पूछते हैं तो हमारे दिल में ऐसी प्रेरणा आती है कि सचमुच मुझे ये करना है, मेरे बाबा के लिए, उसको खुश करने के लिए मुझे ये करना है। तो क्या मैं ऐसे सब कुछ कर सकती हूँ? सिर्फ बाबा और बाबा का प्यार, बाबा की मुरली का साज मेरे मन में रहे तो यही मेरे लिए रक्षा बन जाती है और कुछ चीज का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा और इसमें ही मैं जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो ये भविष्य की बात नहीं है, लेकिन अभी से ही बाबा से सर्व अधिकार प्राप्त करके और बाबा जो चाहते हैं वो बन जाओ। तो बहुत ही पावरफुल और मीठी मुरली थी। So this was the summary of this Murali that we heard on the 18th. 18 जनवरी को जो मुरली सुनी थी पिछले हफ्ते, उसका ये समरी था। Thank you, gentlemen. I think it Uh, would be message helpful वाचो। if you could maybe explain, elaborate on exactly how Baba works through us. Like we are Karanhar and he is बाबा Karavanhar. कैसे हमारे द्वारा सब कुछ कराते हैं, वो करावनहार है, हम करनहार है, तो ये कैसे होता है? When I get an inspiration for some service, जब मुझे कोई सेवा की प्रेरणा मिलती है realize that it's Baba और who's given मैं me ये that समझती हूँ कि inspiration. बाबा से मुझे ये प्रेरणा मिली है Share it with और मैं others. औरों के साथ जब शेयर करती हूँ तो सभी तुरंत ही उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए कंफर्म हो जाता है कि ये बाबा की तरफ से ये प्रेरणा मिली है, फिर सब कुछ अपने आप होने लगता है। हम जो कारोबार करना है, सबको जो कांटेक्ट करना है वो करते हैं, लेकिन उसमें हमें मालूम है कि कुछ और एनर्जी भी इसमें हमारे द्वारा कार्य करा रही है। और अगर हम ये याद करते रहें तो वो एनर्जी फ्लो करती रहेंगी और शुरू से ही ऐसे अनुभव होगा जैसे कि बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है। नहीं तो कई बार हमको तो मैं कितनी अच्छी है, मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, तो मैं बाबा को एक तरफ छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी आइडिया है और दूसरों को मैं बताता हूँ तो उसमें रुकावट आएंगी, विघ्न आएंगे, तो हर कोई वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे और मेरे लिए जैसे बहुत मेहनत का काम होगा। मैं जब मिलियन मिनट्स का सोचती हूँ तो एक व्यक्ति को आइडिया आया ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में कुछ लोगों ने वो आइडिया को उठाया और उसको करने लगा और हमने सोचा कि सिर्फ यूके में करेंगे, फिर हमने मधुबन में प्रेजेंट किया तो 28 देश वहां पर थे। उन्होंने कहा हाँ हम भी वो ज्वाइन करेंगे उसमें, और उसमें से आगे बढ़ते गए। उसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी तैयार टेक्निकल चीजें नहीं थी, कोई ऑफिस भी नहीं था, लेकिन सचमुच ऐसे लगता था ये करण करावनहार सब कुछ करा रहे थे। सब जगह से दरवाजा खुल रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे थे। ऐसे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, कि बाबा ही करा रहे हैं, लेकिन कि हम लोगों को भी सब कुछ करना था। कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसको फॉलो करना होता है, उसको ध्यान देना पड़ता है। तो हर एक ने अंगुली दी थी और उसमें हमको 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले थे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और वो एनजीओ के द्वारा, जिसके पास कोई भी बजट नहीं था और बहुत कम प्रोफेशनल्स थे उस समय। तो कैसे ये सब कुछ हुआ? ये जरूर होगा करण करावनहार की हाथ से ये सब कुछ हो रहा था। बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि कुछ और एनर्जी काम कर रही है। It was amazing to see how everything evolved. So that's one classic example of Karan Karavanhar. You know, how could you have found sponsors? People didn't ऐसे know. स्पॉन्सर्स कहाँ से मिल सकते हैं थे?
it happened, it became the largest non-fundraising project of the UN for the International Year of Peace. So amazing. And then 2 years later, we started Global Cooperation for a Better World. And that became probably the largest research project ever undertaken by an NGO. तो ये जो प्रोजेक्ट था सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड 128 देश में, उस समय तो 160 कंट्रीज थे, उसमें लाइक 90% किंग्स, सब जो स्पॉन्सर्स आए थे, किंग्स, क्वींस, प्रिंसेसेस, सभी ऊपर से लेके नीचे तक सभी ने उसमें हिस्सा लिया था। सचमुच ऐसे लग रहा था करण करावन हार करा रहे हैं। Yes, Jen, when I remember, sometimes Dadi would send us at 5 a.m. in the morning to the office because that's where the telex machine was. कई बारी 5 बजे हम ऑफिस में जाते थे, तो टेलेक्स भेजना होता था, तो हम बेकर स्ट्रीट जाते थे। उस समय घर पर कंप्यूटर नहीं था। अगर बाबा करा रहा है तो क्या उसके अकाउंट में नहीं जाता, उसके खाते में नहीं जाता है? हमें भी कुछ ना कुछ तो करता है ना, आपको तैयार होकर के जाना था। ये तो बाबा नहीं कर रहे थे ना, तो ये तो आपका पुरुषार्थ था, तो उससे आपका खाता में जमा हो रहा था। हाँ, हमें निद्रा जीत भी बनना था और ये ध्यान रखना था कि हर समय हम ध्यान देकर के सब कुछ करते थे, मीटिंग्स करते थे कि हम सब एक साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, कि हर एक में वो क्लैरिटी थी। तो ये सब तो हमारी जैसे हमारा पुरुषार्थ था, लेकिन अगर बाबा ने बीज न बोया होता और दरवाजा न खोला होता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाबा ने जो करना था वो किया, लेकिन उसको फिर हमको बाद में आगे ले जाना था। Yes, yes, very nice. Gentlemen, could we talk about the subtle regions for a moment, being Avyakt month and around 18? So what does सूक्ष्म वतन की बात करते हैं। बाबा सूक्ष्म वतन में सारा दिन क्या करते हैं? Yeah, and just his role, his form. Could you speak about that? उनका रोल क्या है, उनका फॉर्म क्या है? जब से बाबा अव्यक्त हुए तब से सेवा की गति एकदम 1000 गुना बढ़ गई होंगी। बाबा जब अव्यक्त हुए तो 400 सेंटर्स थे और उसमें कुछ हजार लोग थे, और आज मिलियन के ऊपर ब्राह्मण्स है और 4000 सेंटर्स इंडिया में ही। और फिर हमें पूछते हैं विश्व भर में कितना सेंटर्स है? सेंटर्स बनते रहते हैं तो अदल बदल होती रहती है, लेकिन 2000 जितने सेंटर्स सारे विश्व में होंगे और मिलियन ब्राह्मण्स तो होंगे ही। तो बाबा आत्माओं की बुद्धि को टच करते हैं, लोगों को अपने निमित्त बने हुए आत्माओं को प्रेरणा देते रहते हैं, सभी को जगाते रहते हैं। सबसे पहले दादी प्रकाश मणि जब आई, वो लोग गए थे जापान, वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। But it wasn't really an organized tour in the way that when the first delegation came abroad. Avyakt Baba himself would say this is the first delegation. Avyakt Baba हमेशा कहते थे ये पहला डेलीगेशन था। जून 1971 में बाबा अव्यक्त हुए, उसके 2 साल के बाद। उससे पहले ये क्लियर था कि बाबा जैसे धरनी को तैयार कर रहे थे, कहीं को हांगकांग भेजा, किसी को लंदन भेजा, ताकि वो धरनी तैयार करे, वो हल चलाए। और जब निमंत्रण आए तो देखा कि कितनी सारी सेवा हो रही थी। ये जैसे अव्यक्त बाबा सब कुछ करा रहे थे।
अगर मैं उसको ऐसे ही प्रैक्टिकल में देखूं तो जापान में जो सेंटर्स थे और उन्हों का 4 बजे का टाइम, लेकिन सारे दिन में हम देखते हैं फिर हवाई में हम पहुंचते हैं तो वहां पर भी ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मणों को 4 बजे मिलने का, तो बाबा को सारे दिन में जैसे मिलने का होता है, जो बाबा ने वायदा किया था कि मैं सभी ब्राह्मण बच्चों को मिलूं, तो उसमें ही सारा दिन चला जाता है। जैसे एक जगह 4 बजता है, फिर दूसरी जगह 4 बजता है, तीसरी जगह 4 बजता है। एक व्यक्ति हमेशा मुझे पूछती थी सकाश कैसे काम करता है, और मैं उसको बताती थी जब हम बाबा को याद करते हैं और एक व्यक्ति को हम बाबा के सामने रखते हैं और फिर हम बाबा को याद करते हैं, उस व्यक्ति को सिर्फ बाबा के सामने हम लाते हैं और फिर उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इसमें पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसने कहा बहुत ही बुरी रीति से वो लगा था, लेकिन कहते उस समय उसको बिल्कुल जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, बाबा की तरफ से बहुत मदद मिली थी। तो कहती मुझे लगता है कि बाबा मुझे सकाश दे रहे थे और परिवार की तरफ से भी मुझे शुभ भावनाएं मिल रही थी। तो ये तो एक ही कहानी है, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती मेरे पास आती हैं जो कहते हैं कई जैसे टूटने पर ही होता है, जो बाबा उसको कुछ न कुछ रीति से टच करते हैं और उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि जहाँ पर भी हम बाबा के प्यार करते हैं, तो जब भी बाबा को मदद चाहिए बाबा हाजिर हो जाते हैं। जो 13 दिन जो भोग का समय था बाबा का अव्यक्त होने के बाद, उसमें बाबा ने कहा था जब बाबा साकार में थे तो बाबा को शरीर को टाइम देना पड़ता था और रेस्ट के लिए, खाने के लिए, दवाई खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, खाना खाने के लिए, मतलब शारीरिक रीति से उसको समय देना पड़ता था शरीर के हिसाब से। लेकिन अभी बाबा को शरीर का बंधन नहीं है, बाबा अव्यक्त हो गए हैं, शरीर के लिए कुछ भी टाइम नहीं देना पड़ता है। तो बाबा सारा समय हम सब बच्चों के लिए हाजिर है, जहां पर भी हम होते हैं हमारे दिल में जितना प्यार है उसी अनुसार बाबा हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। और हर व्यक्ति ने ये अनुभव किया होगा कि कई थोड़ी लज्जा करते हैं, कई नहीं करते हैं, लेकिन हर एक को आपको कुछ मौका मिलता है, आपको जैसे बहुत ही अच्छा ऐसा विचार आता है, लेकिन अंदर से आता है कि मैंने ये कभी नहीं किया है, मेरे को तो थोड़ा अंदर घबराहट होती है, लेकिन फिर बाबा को याद करते हैं और हम अपनी तैयारी करते हैं और फिर जब वो समय आता है करने का लिए, फिर आप देखते हो कि अपने मुख से जो निकलता है हमने कभी सोचा भी नहीं है, ऐसी चीजें भी निकलने लगती हैं। फिर बाद में आप सोचते हैं कि ये तो सचमुच बाबा ही था, मेरे द्वारा ऐसा नहीं हो सकता था। तो ऐसी भी कई कहानियां हैं, जैसे कोई म्यूजिक करता है, कोई आर्ट करता है, तो ऐसी कुछ चीजें निकलती हैं उनके द्वारा, बहुत मैजिकल लगता है। तो ऐसे लगता है कि बाबा के मैजिक से ये सब हो रहा है, तो ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सचमुच बाबा कार्य करा रहे हैं। बाबा सब अलग अलग जगह पर अपना एनर्जी दे रहे हैं। आप ऐसे एंजल की बात कर रहे हो जिसके लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है, उसके साथ फिर सुप्रीम जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन लाते हैं। किसी ने मुझे कहा
हम धीरे धीरे नीचे उतरते आए हैं। हम देखते हैं कि कैसे, और अभी आप कहते हो कि भगवान हमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो पुनर्जन्म में भी मानती थी और वो देखती थी कि कैसे ये सारे कलयुग में क्या होता है। कहते हैं सतयुग से कलयुग तक हम आए हैं और हमारे जीवन में मैंने बहुत ही नेगेटिव चेंज, परिवर्तन भी देखा है। कैसे जिम्मेवारी भी नहीं संभालते हैं, एक दो को कैसे ट्रीट करते हैं। तो कहती है आप मुझे कह रहे हैं कि थोड़े समय में भी आप इतना सारा परिवर्तन ला सकते हो। तो ग्रंथ में उसने वो भी पढ़ा था। ग्रंथ में लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो कैसे, तो ये यादगार है, लेकिन किस चीज का यादगार है? कैसे भगवान आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। एक ही जन्म में, एक जन्म से भी कम समय में हम सभी को ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जो हमको देवता बना देते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। मैं सेवा के हिसाब से भी मैं कह रही थी कैसे वो करण करावन हार बन करके सब कुछ कराते हैं, लेकिन अपने पर्सनल परिवर्तन में भी मैं देखती हूँ कैसे बाबा करावन हार बन करके कराते हैं। मैं जब बाबा के पास आई, मेरे पास भी मेरे संस्कार के आधार से मैं, मतलब उस समय में कहाँ पहुंची थी, और अभी संस्कार तो थे उसी समय भी। मैं अकेली कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो मुझे किसकी मदद मिल रही थी? तो जरूर है कि बाप दादा की मदद से मेरे में वो संस्कार परिवर्तन भी आता है। हाँ, हमने भी थोड़ा मेहनत की, लेकिन बाप दादा को भी बहुत ही कार्य करना पड़ा है मेरे में परिवर्तन लाने के लिए। तो भगवान बिजी रहता है। No, it's just good to feel what he's doing. वो क्या कर रहे हैं वो Just फील to करना relate अच्छा to रहता है। Betty, so when we meditate, again, some people have this question. जब हम मेडिटेशन करते हैं Do तो I need कईयों to को go to the soul world to क्या हमें, experience Shiv Baba, or can I experience Shiv Baba through Brahma Baba मुझे in the subtle region? So maybe if you can निराकार share दुनिया में जाना जरूरी है या सूक्ष्म वतन द्वारा ही मैं बाबा का अनुभव कर सकती हूँ? and their relationship. It's different stages of experience and both are vital. अनुभव के अलग अलग स्टेजेस है और दोनों ही जरूरी है। ऐसे नहीं है कि एक ज्यादा जरूरी है दूसरा नहीं है। कई कहते मैं निराकारी दुनिया में बाबा के साथ बैठना पसंद करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि जब ब्रह्मा बाबा के साथ वो संबंध नहीं है तो वो इतना मजबूत नहीं होते हैं। जिन्हों को दोनों के साथ संबंध है, अगर सिर्फ निराकार शिव बाबा के साथ संबंध रख करके उनकी याद में बैठते हैं तो जैसे थोड़ा सूखा अनुभव होता है। लेकिन जब परम धाम में जा करके उसमें शक्ति भी नहीं होती है। यहाँ से उड़कर घर जाने के लिए भी मेहनत लगता है कि बाबा ने कहा था घड़ी घड़ी आपको निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहना है ताकि आप अंत में घर सहज ही जा सको। आप भी समझना जरूरी है कि अभी सब अंत के समय पर पहुंचे हैं, अभी हमें घर जाने की समय आ गया है। तो जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो उस समय मैं अनुभव करती हूँ कि
बाप दादा वहां पर दूसरे डिमेंशन में है। मैं भी अपने लाइट का ड्रेस पहन करके बाप दादा के साथ वो अनुभव करती हूँ जो उनके साथ सर्व संबंध से मैं प्राप्त कर सकती हूँ। संबंध की बात तो ये तो एक जैसे मनुष्य जीवन का अनुभव है। तो बाबा ने जब कहा कि कुछ हफ्ते पहले बाबा एक गृहस्थी है, बाबा का परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब भगवान परिवार का अनुभव करते हैं वो संगम युग पर है, जबकि वो नीचे आते हैं तो सूक्ष्म वतन का भी अनुभव, उसमें बाबा के साथ सर्व संबंध, एक के साथ सर्व संबंध, उसकी सुंदरता, उसकी खुशी, उस सर्व संबंध की प्राप्ति इसी समय मुझे प्राप्त होता है। तो हाँ, परम धाम जाना जरूरी है और बिंदु रूप, बीज रूप का अनुभव करना, उसमें योग अग्नि और जो स्नेह की अग्नि है, उसमें भी हम बाप दादा के साथ संबंध हम बहुत मजबूत करते हैं। लेकिन जब वो स्थिति में जब हम प्यार के सागर में समा जाते हैं, पवित्रता के सागर में समा जाते हैं, जिसमें हमारी सफाई हो जाती है और उसमें सारी पुरानी बातें खत्म हो जाती हैं, तो दोनों ही अनुभव करना जरूरी है। सिर्फ एक अनुभव से हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक से दूसरे में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे लिए सहज होता है उससे शुरू करें, फिर दूसरे में चले जाए। कईयों को सिर्फ निराकार भगवान का अनुभव करना सहज है और कईयों को सहज लगता है कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की नैनों द्वारा दृष्टि दे रहे हैं, तो उसमें कनेक्ट करना सहज लगता है। ऐसे नहीं कि पहले ये होना चाहिए फिर दूसरा होना चाहिए, लेकिन जो अपने लिए संभव हो, सहज हो, उसको हम अनुभव करें, लेकिन दोनों अनुभव करना जरूरी है। Beautiful. Thank you, gentlemen. And this question has come up a few times. So what is the difference between avyakt and bodiless? अव्यक्त स्थिति और अशरीरी स्थिति दोनों में अंतर क्या है? अव्यक्त स्थिति में अभी बोल रही थी कैसे मैं सूक्ष्म वतन में जाती हूँ, अपना सूक्ष्म आकार का अनुभव करती हूँ। बाबा ने कुछ दिन पहले ही बताया था, वो अनुभव अपने साथ यहाँ नीचे ले आओ और यहाँ पर सूक्ष्म वतन बनाओ, क्योंकि ये सूक्ष्म अव्यक्त रूप यहाँ पर भी कार्य कर सकती है। उसमें हमें कोई भी अटैचमेंट न होना चाहिए। अगर साकारी रूप है तो उसमें अटैचमेंट होती है, लेकिन अव्यक्त रूप में कोई अटैचमेंट नहीं होती है। लेकिन अशरीरी स्थिति, शरीर से बिल्कुल फ्री, उसमें हमें परम धाम का अनुभव होता है कि मैं निराकारी आत्मा, अशरीरी आत्मा शिव बाबा के साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि उसको तो कभी अपना शरीर है नहीं। मैं आत्मा अपने स्मृति, आत्मिक स्मृति से इस शरीर से अलग हो जाऊं कि मैं इस शरीर को देखने वाली हूँ और उसमें मैं न्यारापन का अनुभव कर रही हूँ, वो सीख रही हूँ। बाबा ने एक बहुत सुंदर, बाबा ने कहा था आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। आत्मा आत्मा है, आत्मा शरीर के बिना भी जी सकती है। तो ऐसे नहीं कि मैं शरीर को छोड़ देती हूँ, शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग होकर के स्मृति से इस शरीर से परे चले जाऊं
इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाऊं। That's very nice. I think if we practice it, we'll feel it. This is Yeah. the thing that, you know, we hear these words हम and शब्द सुन लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, लेकिन जितना उसका अभ्यास करते हैं, I need to have time to practice जितना हम समय देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, and the more I तो practice it, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं my उतना experience मेरा अनुभव होता है। Baba says, और जब बाबा कहते हैं कि "Shachari, अपनी घोट तो नशा चढ़े, then you तो taste the real उसमें हमें नशा अनुभव होता है। intoxication." दूसरे का सुनने से इतना नहीं होता है, Thinking about लेकिन जब हम खुद ही मनन चिंतन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमें वो नशे का अनुभव होता है, न सिर्फ घुटने का लेकिन उसका अनुभव करने का। I can add, Sister Jayanti, as you're seeing the Tower of Peace, one of the things I never really used to do is sit right close up to the tower. It was always around the edge. मैं हमेशा एज पर बैठती थी, लेकिन अभी मैं बाबा के आगे बिल्कुल जैसे नजदीक में जाकर बैठती थी। तो सच में बहुत ही सुंदर अनुभव होते थे। और मैं कुवैत फैमिली के साथ बैठती हूँ, सच में मुझे वो हीट का अनुभव होता है। बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। सच में बाबा के इतना अंदर में कैनोपी के नीचे जाकर के बैठने का, तो जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका अनुभव होता है। Questions from the chat, and that is, gentlemen, as you know, the Murli was all about conquering the mind. मुरली में बाबा मन जीत जगत जीत की बात कर रहे थे। मन जीतने से सारे विश्व को हम जीत सकते हैं। तो मेरे लिए प्रश्न है कि बाबा कहते हैं मन को प्यार से चलाओ, फिर बाबा ने कहा उसको ऑर्डर दो। कई बारी प्यार से वो काम नहीं होता है, तो हमें थोड़ा जोर लगाना जरूरी होता है। तो आपका क्या अनुभव है? कभी लव यूज करना, कभी थोड़ा अपनी अथॉरिटी यूज करना, दोनों जरूरी है। जब हम देखते हैं कि मेरा मन कहीं और भागता जा रहे हैं, तो प्यार से उसको वापस अपने राह पर ले आना, सही रास्ते पर ले आना कि अभी मुझे यहाँ रहना है। लेकिन अगर घड़ी घड़ी ऐसे होता है तो मैं कहूँ नहीं, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा, आपको यहाँ ही रहना है, तो उस समय लव भी यूज करती हूँ और पावरफुल होकर के मन को कंट्रोल भी करती है। तो ये किसी और के ऊपर कंट्रोल नहीं करती, लेकिन अपने ऊपर ही कंट्रोल करती हूँ। कई बार हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अपने को कंट्रोल करना है। मन को डिसिप्लिन करने की बात है। मन को बहुत समय हमने फ्री छोड़ा है, इसलिए हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अभी हमें मन को कंट्रोल करना है। बाबा से जो शक्तियां मिलती है, रूहानी शक्तियां मिलती है, उसको यूज करके मन को कंट्रोल करें। जैसे एग्जाम्पल, सहन शक्ति। किसी ने कुछ कहा और मेरे मन में वो चलती रहते है, वो बात चलती रहती है कि क्यों कहा, कैसे कहा, मतलब। तो उस समय मैं अपने को कहूँ, मेरा दिल इतना बड़ा है, बाबा ने मुझे कितना सारा दिया है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। मैं सिर्फ उसको छोड़ दूं, उसको माफ कर दूं और वो बात वहां ही खत्म कर दूं, और उस शक्ति से, सहन शक्ति से वो बात को वहां ही खत्म कर दूं और मन को एकदम शांत कर दूं और बाबा के साथ बैठ जाऊं। तो अलग अलग शक्तियां जो बाबा से मिली है, उसको हम यूज करें, मन को जहाँ रहना है वहां पर रखें। कई बारी परखने की शक्ति में उसमें इतनी स्पष्टता नहीं है, सोचते या तो ये है या तो वो है, ऐसे प्रश्न मन में चलता है और इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो उस समय मैं बाबा के पास बैठूं, बाबा से शक्ति लूं और वो समझूं कि
वो चॉइसेस क्या है मेरे लिए कि ये करना ठीक है या ये करना ठीक है, तो उस समय फिर सही तरीके से वह मैं निर्णय करूं। ऐसे नहीं है कि मैं घड़ी घड़ी एक ही बात सोचती रहूं, लेकिन परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति को यूज करके मैं वो सही निर्णय करूं। अगर मैं परखने की शक्ति से देखती हूँ कि कई चीजें मेरे समझ के बाहर है, मैं समझ नहीं सकती हूँ, तो मैं कह दूं कि अच्छा मैं इसके बारे में सोचेंगी, उसके बारे में थोड़ा कुछ ध्यान दे करके उसके बारे में रिसर्च करेंगी और अपना निर्णय जो लेना है उसको हम अगर रोक देते हैं तो इसमें हमारा समय बहुत व्यर्थ चला जाता है। तो अगर मैं अपने समय को सही तरीके से यूज करती हूँ तो बाबा ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके बताए हैं, लेकिन एक चीज मुझे घड़ी घड़ी याद आता है। बाबा ने कहा कि जब व्यर्थ संकल्प चलता है, कुछ हफ्ते पहले जो बाबा ने मुरली चलाई थी, तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प से हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है और जो जमा करना चाहिए अपने में, जो बांध करके रखना चाहिए, वो हम नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे में खालीपन आ जाता है। तो उस समय हमारे में असंतुष्टता होती है, कोई खुशी नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर मैं सोचूं बाबा मुझे क्या कह रहे हैं और वो प्रैक्टिस करूं, बाबा मुझे क्या प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो मैं संतुष्टता की स्थिति पर प्राप्त कर सकेंगी। नहीं तो मैं कहेंगी कि 10 साल से 20 साल से मैं करती रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी कुछ अनुभव नहीं है। लेकिन इसका मैं बाबा से प्राप्त तो कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि बाबा मुझे दे नहीं रहा था, मुझे दे रहे थे लेकिन मैंने अपने अंदर नहीं रखा है और उसमें मैंने ड्रेन होता जा रहे हैं। तो अभी संगम युग पर इसी समय पर मुझे अपने को इतना भरना है और वो प्राप्ति मेरे साथ रखनी है सारे संगम पर, ताकि दूसरे कल्प में भी मेरे साथ हो। Yeah, so beautiful, Jennifer. Thank you so much. Somebody's asking that Baba has trained you to become soul conscious. Can you share your experience of that? बाबा ने आपको ट्रेनिंग दी है आत्म अभिमानी होकर के रहने की, तो आप अपना अनुभव सुनाओ। ये तो घड़ी घड़ी मेहनत करनी है। जैसे आप गार्डन बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो उसमें और भी फालतू पौधे उगने लगेंगे। तो ऐसे ही हमें आत्म अभिमानी स्थिति के लिए भी निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। उसमें घड़ी घड़ी ध्यान देना जरूरी होता है। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, तो उसको हम वो ब्लेसिंग लेकर के कुछ समय के लिए हम उस स्मृति में रह करके वो अभ्यास करते रहे। मैंने समझी कि कोई और तरीका है जिससे हम जल्दी ही आत्म अभिमानी बन सके, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल समय में भी हम अपने मन को चेक करें कि सचमुच हम ट्रैफिक कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत जैसे एक वरदान है। जहां भी हो हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई तरीका अपने लिए अपनाए काम पर भी। आजकल फोन में भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, तो उसमें ऐसा कोई सेटिंग बनाए जिसमें हम घड़ी घड़ी याद आए कि अभी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, उसमें हम 1 मिनट भी बाबा की याद में रह सके, अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में रख सके। Yes, and as Dadi Gulzar says, you can associate it with something. So if you're drinking water, then जैसे दादी गुलजार कहती थी, हर समय आप पानी का ग्लास पीते हैं, the last question. तो उस समय So somebody's asking who actually lit the pyre. किसने बाबा के अग्नि संस्कार दिया था। So Sister तो Jyoti, would you like to share that story? आप ये कहानी सुनाओ सबको।
बाबा की संदेशी दादी प्रकाश मणि के साथ थी। तो पहला प्रश्न उनको दिया गया था, लेकिन फिर गुलजार दादी को बोला कि आप तुरंत ही आ जाओ। 9:30 बजे गुलजार दादी को दादी ने फोन किया। दूसरे दिन 8 बजे वो आबू पहुंच गई थी। और फिर पहला संदेश कि यहाँ पर पांडव भवन में ही बाबा का अग्नि संस्कार होना चाहिए। सभी को संदेश दो कि जिसको जान आना हो आ सके, और कोई अरेंजमेंट नहीं करो, जिसको भी आना है वो आ जाए। तो हर दिन बाबा का कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन आते रहे। तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ जैसे बाबा बताने चाहते थे वैसे होता रहा। और लास्ट डे 21 तारीख के बाबा को अग्नि संस्कार में कौन अग्नि को जलाएंगे, तो बाबा का संदेश था कि दादी प्रकाश मणि को जलाना है। सारे जो इंडिया की ट्रेडिशंस है उसके विरोध था, क्योंकि कोई माता कोई बहन ऐसे नहीं करती थी, लेकिन ये बाबा का संदेश था। तो उसमें भी बाबा को भोग भी कौन लगाए, तो ये भी प्रश्न था। बहुत सारे ट्रांस मैसेंजर्स भी थी, दादी गुलजार से भी बड़े ट्रांस मैसेंजर्स थे, लेकिन सभी ने ना किया। पुष्प शांता ने ना किया, संतरी दादी ने ना किया, शील दादी ने भी ना कहा। तो फिर दादी गुलजार की तरफ देख करके कुमार का दादी ने कहा, आप तो ना नहीं करेंगे ना। तो उसने भोग लगाया और वो तो बाबा को जो संदेश लगा भोग लगाया था, तो उसमें तो ये गुलजार दादी खुद हमने बताती थी कि कैसे आपको कैसे चुना गया था ट्रांस मैसेंजर के लिए, भोग लगाने के लिए। तो उसने बताया था, ये कहानी बताई थी कि सभी ने ना किया, फिर उसने हाँ कहा। कितना अच्छा लगता है ये सब कहानियां सुनने के लिए। और आप उस समय वहां पर हाजिर थे जब बाबा का अग्नि संस्कार हुआ था। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट मंडे बाबा की मीटिंग है 31st को। तो अगले हफ्ते मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे को होगा, 1 तारीख को। तो अभी हम योग करते हैं और अब यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति। An angel took my hand today and led me down a narrow lane. He showed me people full of pain and said, how can you talk of fun? This dust bowl of humanity survives around a broken tree, waiting for the golden seed to be planted beneath the sun. So how can you chase vain desires
take courage now and hold my hand, and together this war will be won. Together this war will be won. Om Shanti. Thank you.